Krishna Murari very closely. The melody and the words and everything are not very easy. They're not simple. Maybe you've never even heard this melody before, this bhajan, but you all were listening so closely. And so that sound vibration is entering into our ears. And through our ears, the sound vibration is entering into our hearts and doing so many things in there. We don't even know what's going on in there. Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Cheto Darpana Marjanam, that the mirror of the heart, the mirror of the consciousness is being cleansed each and every time we chant the name of Krishna, each and every time we chant the name of Radha, of Hare, of Rama, of Krishna Murari, of Banka Vihari. So we sing so many names just now. Imagine how many little specks of dust have gotten flicked off that mirror of the heart. Maybe we can see a little bit clearer now. And each time we do it more and more, we'll be able to see our true identity clearer, and we'll also be able to see how we are meant to serve. What is our duty? What is our purpose of existence? Which is to serve Krishna, but each one of us has our own unique way to serve Krishna. Some of us may have a way of being amazing cooks, and so we can share, we can cook for Krishna. Some of us may be whatever. We may be accountants. And we find a way somehow to use that in the service of Krishna. And one of the things I would like to encourage all of us is that all of you are so talented. I imagine this. I feel the energy from all of you in the room, and especially the young people. And my experience is that as I share Krishna with others, then Krishna reciprocates more and more with me. This is, yes, right? What do you think, Prabhuji? Prabhuji always, him, his family, their life is dedicated to sharing Krishna one way or another, always. So this is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Sri Chaitanya Mahaprabhu is manifesting. In just a few days, he's going to appear. Gauranga! And his mood was to share. 10 days? Is it 10 days? So it's the countdown. The countdown is, so from today, 9 days. So we're already on 10, 9, 8, 7. The countdown is happening until the full moon of Sri Chaitanya Mahaprabhu arises. So I encourage each of us that, I've found a way somehow. I travel a lot, and I travel to many countries around the world and many cities. And my experience is that it's not just Indian people that are dancing and chanting like this in ecstasy, but many, many people from all different cultures and all different traditions are resonating with this chanting of the holy names. So
we may not all be kirtan singers, we may not all be expert mridanga players and guitar players and like that. So, okay, maybe kirtan seva is something that we do when we come together and we sing loudly in response to kirtan, right? But I'm sure that many of you, especially on this side of the room, are amazing cooks, right? So you can use that to share Krishna with others. You know, I imagine that if you were to go to, like, say, your local yoga studio or something like that, and you were to say, I want to offer a cooking class once a month. You know, I do cooking and I know how to make Indian vegetarian cuisine, and I can teach your people how to do that. I imagine that you would get 2, 3, 4, 5, who knows how many people to show up and sign up, and you can say, you know, I'm interested in this, or whatever, I don't know, in your community, I don't know where, but you can find some place where you can share your talent, and in that way, then you can show them, and when we make this, we think of Krishna, or we think of God, and we think that we're not making this for ourselves, we think that we're making this as an offering. Slowly, slowly, you can just inject, you know, you can say, this is vegetarianism, or Krishna says in the Gita that one should offer him a leaf, a flower, fruit, waters. This is what we're doing. Who knows? Very, very simply, it can be, or some of you may be expert. You may be expert in the Bhagavad Gita. I'm sure that there's many here who are expert in Bhagavad Gita or stories and how can this maybe as a devotee, as a bhakta to your class. Something about Krishna stealing the butter, or, you know, something from your tradition and something that inspires you. Thank you for that question. It reminds me of Prahlad Maharaj. If you're really bold, then when your teacher walks out of the class, you can say, now let's chant Hare Krishna. Don't waste your life, you know? Youth is very short, and very soon you will have to deal with bills and have a husband, you know? And you'll be dealing with so many problems, and then you'll get older, and then your knees won't work anymore. The time is very short. We only live 100 years. 50 of those years we sleep. Right? Time is so short. That's how Prahlad Maharaj spoke. If you're really bold and you feel empowered, then you can do it like that, you know. But there's also very subtle ways. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Sanket Bhai. Happy 50th birthday. Thank you. Good. Are you ready for Jai Radha Madhav? Sure. Can you see my video? No. Okay, that's fine then. I think some problem. Okay. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jan Vallabha Jaya Girdhar Hari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jan Vallabha Jaya Girdhar Hari Yamuna Nandan Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Yasoda Nandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you so much. Wonderful singing.
we'll wait for Prabhuji for a couple of minutes. He He's joining. should be joining. Shruti Mataji, thank you again for joining. Yashoda Gopi Mataji, Bindu, Shah Mataji, प्रभु जी के डैडी प्रभु जी आ गए. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा एवरीवन. बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आप लोग आए हैं. और हैप्पी बर्थडे संकेत प्रभु जी. शुरुआत ही आपसे करेंगे. थैंक यू प्रभु जी. प्रभु जी गा लिया ऑलरेडी. हाँ, गा लिया ऑलरेडी. फिर से गाएंगे, पर फिर से गाना संकेत. सॉरी मेरा तो रह गया प्रभु जी. सॉरी, माफ कीजिए. नहीं, फिर से गा संकेत प्रभु. चलिए, काफी लोग अब आए हैं, लगता है. अभी गा लीजिए प्रभु जी. श्योर, थैंक यू. हरे कृष्ण. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हरि. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधर हरि. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत बढ़िया. थैंक यू. चलिए शुरू करेंगे. तो कल हम लोगों ने 4.13 पे तक खत्म किया था, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान खुद बोल रहे हैं ये बात कि उन्होंने ये वर्ण आश्रम का सिस्टम बनाया है और कैसे ये परफेक्ट है. और हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि अगर हम सब लोग जो हैं अपने अपने आश्रम और अपने अपने वर्ण के हिसाब से काम करेंगे, वर्ण आश्रम के हिसाब से काम करेंगे, तो हम लोग प्रोडक्ट जो है जो हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी जो है वो और बढ़ जाएगी. और आगे और क्या होगा वो हम और आगे पढ़ेंगे. अभी चलिए 14 से शुरू करेंगे आज. नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृह इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सद् बध्यते. मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ. जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानते हैं वह कभी कर्मों के फल के पक्ष में नहीं बनता. तो यहाँ पे भगवान एक बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं कि एक चीज ध्यान आई मेरे को. प्रभु जी, आपके प्रश्न से पहले शुरू करना है या पहले ये कर लें और फिर आपका प्रश्न लेंगे? नहीं प्रभु जी, आज प्रश्न स्किप कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट वीक. अभी मेरे को रिकॉल भी नहीं होता है वो प्रश्न. ठीक है. तो यहाँ भगवान अब एक और बात बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी काम नहीं है, काम मतलब वर्क की बात हो रही है, काम वासना की बात नहीं हो रही, काम की बात हो रही है, कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरे को इफेक्ट करता हो, है ना. फिर पढ़ेंगे. देखिए, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता. हाँ, चलिए कोई बताएगा वैसे क्यों नहीं कर्म का प्रभाव पड़ता? अभी तक हमने जो करते आए हैं 4th चैप्टर में, अभी तक हमने यही सारा पढ़ा है कि भगवान पे क्यों नहीं कर्म का फर्क पड़ता. तो कोई थोड़ा ही बताएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, थोड़ा जो भी आप लोग समझते हैं कि भगवान क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मेरे पे कर्म का कोई असर नहीं पड़ता. कोई बताइए. संतली माता जी आप मत बताइए, अगर आप ही बताएंगे तो आंखों में क्या होगा. और कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप गेस कीजिए. अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने. कोई गलत भी हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है. इससे क्या है, थोड़ा इंटरैक्शन होगी आपस में.
आप लोगों को क्यों लगता है कि भगवान के ऊपर कोई कर्म का असर नहीं पड़ता? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, भगवान ने ही सब कुछ बनाया है बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। इसीलिए उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। और ठीक है। जैसे हम भी कोई चीज बनाते हैं तो वो भगवान के अंदर से निकलकर चली तो जाती है, पर भगवान भी अपनी जगह पे एज इट इज रहते हैं। उनको उस चीज को बनाने के बाद भी वो चीज उनके ऊपर असर नहीं करती। चलिए बढ़िया है। और कोई बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इस पॉइंट से थोड़ा और आगे एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। रोहन प्रभु आप बताइए कि भगवान के ऊपर कोई कर्म का क्यों नहीं असर पड़ता? अभी अभी हमने पढ़ा था, देखिए हमने पिछले सैटरडे की क्लास में किया था हमने ये। बहुत इजी है, आप लोग ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, बट मुझे लगता है क्योंकि भगवान कर्मों के बंधन में है नहीं, इसीलिए आई गेस जो भी वो मतलब वो कर्मों के बंधन में नहीं है, इसलिए उनको कोई इफेक्ट नहीं आता। ये तो बात बिल्कुल सही है कि वो कर्मों के बंधन में नहीं है, पर लेकिन कर्म के बंधन में क्यों नहीं है? अभी पढ़ा था आपने, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। भाई अभी हमने देखिए नाइन्थ वर्स में किया था, 8th वर्स में किया था, याद है? अच्छा चलिए मैं हिंट दे देता हूँ एक, थोड़ा इससे क्या होगा आइडिया लग जाएगा कि आप लोग सुन रहे थे कि नहीं। कि हमने पढ़ा जन्म कर्म च मैं दिव्यम, है ना, कि मेरे जन्म और कर्म के बारे में जो जान जाएगा तो उसको कोई उसका सब मुक्त हो जाएगा। अब इससे थोड़ा आइडिया लगाइए कि क्यों प्रभु भगवान के कर्मों पर असर नहीं पड़ता। प्रभु जी, वो भगवान की लीला होती है सब, राइट? बहुत बढ़िया, ये भी एक बहुत बढ़िया आंसर है, ये भगवान की लीला है। पर चलिए मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। देखिए भगवान के हरे ऊपर इसलिए कृष्णा असर नहीं प्रभु जी। पड़ता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो इला बोलो। भगवान दिव्य है, इसलिए उनके ऊपर हाँ कर्मों का कोई असर नहीं है। हाँ, ये बात है कि वो भगवान की जो फॉर्म है, जो भगवान का रूप है, हाँ वो दिव्य रूप है, वो हमारी तरह नहीं है। ये हमने पढ़ा था, याद है आपको? कि देखिए वो अपनी पोटेंसी से आते हैं। हाँ, वो जैसे देखिए समझिए, अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो अगले जन्म में मेरे को अच्छा शरीर मिलेगा। उनके ऊपर ये असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जन्म हमारी तरह नहीं लेते हैं, वो हमारी तरह इस मटेरियल वर्ल्ड के वो नहीं है। इसकी वजह से जब वो मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है तो फिर उनके ऊपर मटेरियल काम कैसे करेगा? जैसे मैंने आपको याद है प्रेसिडेंट का एग्जांपल दिया था कि जब हमारे पूना टेम्पल में प्रेसिडेंट आए थे, तो ऑल्दो टेम्पल हमारा था, हाँ, लेकिन सारी जो चीजें थी वो उनकी थी। मतलब जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो उनके हिसाब से होंगे। इवन मैंने बताया था कि टॉयलेट्स में भी एसी लगाए गए थे, हाँ, और हमारा जो रूल है उस पर काम नहीं करेगा। हमारा जो खाना है वो नहीं खिलाया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा कि ये खाना कहीं गलत तो नहीं है। तो इसकी वजह से श्रुति ने हाथ खड़ा किया। हाँ श्रुति बोलो, आगे बोलो। हाँ, उनका जो मटेरियल वर्ल्ड के साथ जो रिलेशनशिप है भगवान का, मैंने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि कुछ अचिंत्य भेद भेद तत्व ऐसा कुछ है। सो हाँ जी, हाँ जी, इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा समझा सकते हैं? हाँ जी। अचिंत्य भेद अभेद जो जो वो है, वो जो है वो कैसे है कि वन वन भी है। मतलब एक एक काम करता हूँ, मैं इसको एंड में समझाता हूँ, क्योंकि नहीं तो ये बिल्कुल ही एक गूगली हो जाएगी। पर मैं इसको समझाता हूँ, पर ठीक आपका है, भी आंसर बिल्कुल ठीक है ठीक है। कि भगवान जो है वो अचिंत्य भेद अभेद है। वो मैं बाद में बताता हूँ, ये एक अलग फिलॉसफी है, थोड़ी डिफिकल्ट फिलॉसफी है एंड में। तो चलिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे रोहन प्रभु ने बताया वो कर्म फल में नहीं है, प्रभु जी ने भी आगे बताया लीला है, ये सब ठीक है। तो जैसे मैंने भी बताया कि भगवान का जो फॉर्म है, जो शरीर है, वो दिव्य है, वो हमारी तरह नहीं है। इसलिए हमारे ऊपर इस मटीरियल, हम लोग इस मटीरियल वर्ल्ड में जन्मे हैं। और आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि कैसे हम लोगों का जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता। आपने देखा कि कैसे देवकी और वासुदेव जो थे, उनके सामने भगवान जो है 4 हाथों में के साथ आ गए, अपीयर हो गए, है ना। और अगर आप उससे पहले भी कृष्ण बुक पढ़ें तो उसमें आता है कि भगवान जो थे पहले, देवी की माता के जो उनका जो शरीर था वो चमकने लग गया और उनके सीधा जो है वो हार्ट में अपीयर हुए।
लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि हम लोगों का बर्थ कैसे होता है, तो इसलिए उनका जो फॉर्म है वो अलग है, और जब फॉर्म अलग है तो इसलिए उनपे ये जो कर्म है इस मटेरियल वर्ल्ड के वो असर नहीं करते। तो पहली तो बात ये हो गई, यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि कोई भी जो कर्म है मेरे पे असर नहीं करता। जैसे आप देख लीजिए कि जब भगवान जो है किसी को अगर मारते हैं, तो ऐसे नहीं कि वो जो है वो अब नरक जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन पे असर नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई ऐसे धर्म हैं जो ये मानते हैं, उसको बोलते हैं कर्म मीमांसा फिलॉसफी, कि कर्म जो है वो सबसे ऊंचा है। वो लोग ये मानते हैं, कर्म मीमांसा फिलॉसफी, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि वेदर आप ये हो, भगवान हो या कुछ भी हो, अगर आपने कर्म किए तो उसका फल आपको मिलेगा। कि अगर आपने गलत काम किया तो गलत कर्म किया तो उसका रिएक्शन आएगा, अच्छा किया तो अच्छा आएगा, क्यों ना आप भगवान भी हो। पर ऐसा नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि कर्म को बनाने वाला भी कौन है ना। कर्म को बनाया भी तो किसी ने होगा ही, तो उसके ऊपर कैसे आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, और कंपनी के या होटल के मालिक हैं, आप अज्यूम कीजिए आप होटल के मालिक हैं, ठीक है। और मैं आया आपके होटल में आया और मैंने खूब खा लिया, और खाने के बाद जब आपके मैनेजर ने मेरे को बिल प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया, तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो आप आएंगे और बोलेंगे कोई बात नहीं, जाने दो। तो कर्म खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप आए मैनेजर को बोलें कि इसको जाने दो, कोई बात नहीं, मेरा होटल है, जाने दो। तो मैनेजर आपसे लड़ पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे जाने दूं, नहीं जाने दूंगा, इसको तो पे करना ही पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। तो वैसे ही भगवान ने भी जो है, ये भगवान की सृष्टि है, और भगवान पहले कह चुके हैं मैया अध्यक्षेन प्रकृति, ये जो सारी प्रकृति है ये मेरे अंडर चल रही है। तो फिर भगवान अगर भगवान की प्रकृति है, तो फिर ये कर्म जो है वो उन पे कैसे असर कर सकता है ना। इवन जो यमराज भी हैं, आफ्टर ऑल उनको भी सर्विस की कैसे, कि कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग जाएगा, वो भगवान ने दी है ना। तो फिर ये भगवान के ऊपर कैसे फिलॉसफी काम कर सकती है। इसलिए ये जो कर्म मीमांसा फिलॉसफी है ये हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये यहाँ पे पहली चीज तो ये बोल दी है भगवान ने कि मेरे पे कोई भी कर्म जो है असर नहीं करता। आगे देखिए क्या बोलते हैं, इसके 3 भाग हैं। आगे देखिए क्या है, फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, हिंदी में पढ़ेंगे। ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं, कि और जो जो कर्म का जो फल आता है मैं उसके भी कोई कामना नहीं कर रहा हूं। अब देखिए इस संसार में, मानिए या ना मानिए, इस संसार में हम लोग जो भी करते हैं, हम उसका कुछ रिजल्ट पाने की मन में एक इच्छा होती ही होती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरे में इच्छा नहीं है। अल्लाह साहब बहुत प्योर डिवोटी हो, वो बात अलग है। लेकिन हर आदमी, आप पढ़ते भी हैं तो क्यों पढ़ते हैं, सोचते हैं कि भाई मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, कोई ना कोई पीछे रीजन है। काम करते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं क्योंकि पैसा मिलना है ना कुछ जरूर इसके पीछे मोटिव रहेगा। पर भगवान कह रहे हैं कि मैं जो भी कर्म करता हूँ, पहले तो बता दिया कि कर्म का कोई फल, मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं आता, और दूसरा बता रहे हैं कि ना मैं फल की इच्छा करता हूँ। क्योंकि देखिए भगवान के पास सब कुछ है, तो भगवान किसी चीज की इच्छा क्यों करें। हम लोगों को जो है, हम लोग जो है, हमें चीजें चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम ये चीजें करते हैं। इसलिए देखिए हम लोग दीन हैं और भगवान दीन बंधु हैं। आप देख रहे हैं दोनों में फर्क देखिए, हम लोग दीन हैं, हमें चाहिए चीजें, लेकिन भगवान क्या है, भगवान का नाम क्या है, दीन बंधु है, वो देने वाले हैं। आप देखिए भगवान के, हमने डिस्कस किया था कि भगवान के पास 6 जो हैं वो हैं, उनके उनकी जो उनके पास जो गुण हैं वो 6 हैं। भगवान भगवान क्यों कह देते हैं, क्योंकि उस वान जो कैरी करते हैं, और भग मतलब जिसके पास ये ऑप्युलेंस ऑप्युलेंस। तो क्या ऑप्युलेंस है, देखिए पहला ऑप्युलेंस तो है कि उनके पास स्ट्रेंथ है, ऑल स्ट्रेंथ है उनके पास। देखिए कभी भी वो हार नहीं सकते। उन्होंने 7 दिन चिच्ची उंगली पे उठा ली। आपने कहीं पे भी और पढ़ा है कि किसी राक्षस ने आखिर अपनी चिच्ची उंगली पे उठाई, या लिटिल फिंगर पे मतलब, या 7 दिन विदाउट, और हंसते भी रहे नीचे, या कभी किसी ने किया ऐसा, कभी आपने कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा होगा, पर भगवान ने उठाया। आप देखिए भगवान कितने छोटे थे तब उन्होंने कंस को एक मुक्के से मार डाला, और कितने सारे जितने भी ये डीमंस थे, राक्षस लोग थे, उनको मार डाला। छोटे छोटे ही थे अभी तो वो। तो आपने कभी भी ऐसा सुना है? कहीं नहीं सुना होगा आपने। फिर उनके पास सबसे ज्यादा वेल्थ है,
अगर आप भगवान के बारे में पढ़ें महाभारत में, तो आप देखेंगे कि उनके महल जो थे कितने सोने चांदी के बने हुए थे, डायमंड्स लगे हुए हैं। तो ये उनके पास पूरी वेल्थ है, और इतनी वेल्थ किसी के पास भी नहीं है, रावण के पास भी नहीं है, देखिए इतनी वेल्थ। तो उनके पास सारी वेल्थ है। फिर उनके पास देखिए सारी ब्यूटी है ना, सबसे ज्यादा सुंदर है वो, इतने सुंदर है कि हम सोच भी नहीं सकते। भागवत देखिए ऐसी स्टोरी आती है कि जब भगवान ने मोहिनी मूर्ति का रूप लिया था, तो इवन शिव जी भी 1 मिनट के लिए चकरा गए थे। तो इतने सुंदर है वो। तो कभी कभी आप कभी आपने ऐसी कोई सुंदर देखी, सुंदरता देखी है इस मटेरियल वर्ल्ड में जिसको देख के आपको चक्कर आ गए? ये जरूर आपने बोला होगा कि ये तो बहुत सुंदर चीज है, लेकिन कभी ऐसी कोई चीज देखी है जिससे आप चक्कर आ गए हो? आपको ऐसा कोई चीज नहीं देखी होगी। लेकिन भगवान देखिए इतने सुंदर है। फिर भगवान के पास सारी नॉलेज है, सब जानते हैं, पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर जानते हैं, सारी नॉलेज जानते हैं। आदमी को देखिए हम उन्होंने बनाया, भगवान को शरीर का देखिए कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, सब भगवान ने बनाया। देखिए कैसे बनाया, कितने यूनिवर्सेस बनाए हैं, स्टार्स, ये क्या क्या नहीं बनाया है। फिर उसके बाद फेम, भगवान के पास सब फेम है, भगवान की कभी भी बेइज्जती नहीं हो सकती। आप देखिए हमेशा ही फेम है। इवन जब वो रन छोड़ के भी भाग गए, तो देखिए लोग उनको रन छोड़ के नाम से पूजते हैं, ये नहीं कहते कि रन छोड़ भाग गए, है ना। तो उनके पास पूरा फेम है ना। गुजरात में कौन सी जगह है वो, डाकोर, आई थिंक डाकोर है, जहाँ पे देखिए भगवान का ये मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। तो कोई कभी भी ऐसा, भगवान जब रण भी छोड़ देते हैं तो भगवान को लोग पूछते हैं। तो उनके पास ऑल फेम है, और कभी भी खत्म ना होने वाला फेम है, इटर्नल फेम है। ऐसे नहीं कि आज फेम है कल खत्म हो जाएगा, नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात जो भगवान के पास है वो है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब क्या, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो डिटैच्ड है, कभी भी वो छोड़ सकते हैं। तो ये है भगवान की, देखिए उनके 6 उनके ऑपुलेंसेस हैं। तो जब भगवान के पास ये है तो वो किसी चीज की इच्छा क्यों करेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड में, क्यों करेंगे आप बताइए। तो भगवान, हम लोग करते हैं क्योंकि हमारे पास ये चीजें नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास सुंदर नहीं है, हम सुंदर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए तभी तो ये फेयर एंड लवली इतना सब कुछ बिकता है, क्योंकि हम सब लोग सुंदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग जिम देखिए कितने चलते हैं, इंडिया में भी यूएस में भी, क्योंकि हम ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये रिजल्ट की जरूरत है, लेकिन भगवान जो है वो इसकी इच्छा नहीं करते, भगवान के पास ऑलरेडी है। तो भगवान का ये जो जो एंजॉय करने का तरीका है वो ये सब चीजों से नहीं आता। भगवान क्योंकि सब है, भगवान जो एंजॉय करते हैं वो करते हैं अपने भक्तों के साथ, प्रेम का आदान प्रदान, इससे भगवान को जो है मजा आता है, और वो इसकी इच्छा करते हैं, ये सब चीजों की इच्छा नहीं करते। जैसे मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा कि देखिए कैसे, आपको पता है कि एक्चुअली ये स्टोरी दूसरी है, पर मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कैसे ये मटेरियल चीजों की इच्छा नहीं करते। कि भगवान के, आप जानते हैं बहुत सारे अवतार हुए, उनमें से एक अवतार था नर नारायण। वो ऋषि के रूप में आए, नारायण के ऋषि के रूप में आए, और वो बद्रिका आश्रम में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो जब वो बैठ के तपस्या कर रहे थे तो इंद्र जो थे वो सबसे पहले घबरा गए। एक्चुअली आपको पता है सबसे पहले जो है इंद्र घबराते हैं अगर कोई भी तपस्या करे। क्यों घबराते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये इतनी तपस्या कर रहा है, ये अभी मेरी जो है पोजीशन ले लेगा। इसलिए देखिए एक चीज तो पक्का हो गई कि इवन इवन डेमीगॉड्स की जो पोजीशन है, वो भी जो है वो टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। अगर परमानेंट होती तो घबराने की क्या जरूरत है, टेम्पररी है, उनको हमेशा डर लगा रहता है। इससे पता लगता है कि अगर आप देवी देवता भी बन जाएं फिर भी वहां पे डर रहता है कि कहीं अब ये ना हो जाए। अब देखिए इंद्र इतने पावरफुल हैं, लेकिन वो इतना घबरा गए कि कहीं ये इतनी तपस्या कर रहा है, कहीं ये मेरे को मेरी मेरी पोजीशन तो नहीं ले लेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कामदेव को बुलाया। तो कामदेव को जब बुलाया तो बोला कि एक काम करो, तुम जो मेरे यहाँ से 4-5 जो डांसर्स होती हैं उनको ले जाओ और इनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करो। तो जब वहाँ तो कामदेव को बैड एक्सपीरियंस है, उन्होंने बोला नहीं बाबा मैं नहीं जाऊंगा, पहले एक बार आपने मुझे शिवजी को तंग करने के लिए कहा था तो शिवजी ने तीसरी आंख खोल दी थी, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इंद्र ने बोला नहीं नहीं तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। तो कामदेव ने बोला ठीक है, क्योंकि इंद्र जो है वो देवताओं के राजा हैं तो मानना पड़ा। तो जब वो गए तो तीर छोड़ने लगे। तो क्यूपिड का आपने देखा है ना, आपने क्यूपिड का साइन देखा होगा कि वो ऐसे उनके पर लगे हुए और वो तीर छोड़ते हैं। और एक्चुअली आप देखिए सारी मटेरियल वर्ल्ड में
क्यूपिड जो है वो हम सब पे तीर छोड़ रहे हैं, इसलिए देखिए हम सब लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो जो नारायण ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन वो तपस्या आंखें बंद करके समझ गए कि ये जो है ये कारनामा जो है ये इंद्र का और कामदेव का है। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, उन्होंने बोला कि तुम मुझे ये कुछ डांसर से मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो उन्होंने अपने अंदर से एक बहुत सुंदर जो है निकाली उर्वशी, डांसर जो है निकाली उर्वशी। और वो कहते हैं कि सबसे सुंदर सुंदर जो अप्सराएं होती हैं उनमें सबसे सुंदर जो है वो उर्वशी है। जैसे रंबा है और बहुत सारी हैं, पर लेकिन जो सबसे सुंदर है वो उर्वशी है। इसलिए देखिए कि इंद्र के जो कोर्ट में उर्वशी है वो उनका प्रेजेंट है। नारायण ने उनको एज प्रेजेंट किया था कि उन्होंने बोला तुम मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम मुझे क्या डिस्ट्रैक्ट करोगे, मैं तुम्हें अपने अंदर से निकाल के देता हूँ। तो उन्होंने उर्वशी जो है इंद्र देवता को दी। तो ये स्टोरी से क्या पता लगता है कि भगवान जो है इस मटेरियल चीजों से, इन मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसलिए वो किसी भी कर्म की जो उसका रिजल्ट आता है उससे इच्छा नहीं करते। उनको ये चीजों से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसा, उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता, ब्यूटी से फर्क नहीं पड़ता, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उनको क्या फर्क पड़ता है, अपने भक्तों के आदान प्रदान, जब से प्रेम के आदान प्रदान होता है वो उसकी इच्छा करते हैं। जैसे अब आप ये स्टोरी सुनिए कि आप सब जानते हैं कि जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसा के मारा था, तो अर्जुन ने एक्चुअली कसम खा ली थी कि अब मैं कसम खाता हूं आज कि कल सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का जो है खात्मा कर दूंगा, नाश कर दूंगा, उसको मार दूंगा। तो उन्होंने तो एक कसम खा ली और भगवान को पूछा भी नहीं और सो गए। तो ऐसा कहते हैं, हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, देखिए आपको याद है कि नहीं, ऐसा कहते हैं सब लोग सो गए, जब शाम हुई तो सब लोग सो गए, लेकिन एक आदमी था जो नहीं सोया पूरी रात। बताइए कौन नहीं सोया, कोई बताए कौन नहीं सोया? देखिए मैं रिपीट करता हूं कि जब अभिमन्यु का वध हो गया तो अर्जुन जो थे बड़े दुखी थे, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं अगले दिन जब सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य डूबने से पहले मैं जयद्रथ का खत्मा कर दूंगा, नहीं तो मैं खुद अग्नि में छलांग लगा लूंगा। तो ऐसे कसम खा के वो सो गए और सब लोग उस तरफ वाले भी सो गए, कौरव भी सो गए, पांडव भी सो गए, लेकिन एक व्यक्ति था जो नहीं सोया। तो बताइए वो कौन नहीं सोया? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान। बिल्कुल करेक्ट, कृष्ण भगवान नहीं सोए। देखिए क्यों नहीं सोए, क्योंकि भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त हो तुम, एक्चुअली एटलीस्ट मेरे से तुमने डिस्कस तो किया होता, तुम जयद्रथ को कैसे मारोगे? जयद्रथ क्या तुम्हारे आगे खड़ा होगा, बैठा होगा? वो भी तो प्लान बना के बैठा होगा। क्या उसे नहीं पता कि तुम उसको मारने की कसम ले चुके हो? तो क्या वो तुम्हारे सामने आ जाएगा? तो भगवान देखिए अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं कि सब सो गए लेकिन भगवान चक्कर लगाते रहे। और ये है लीला। संकेत प्रभु जैसे बता रहे थे कि ये भगवान की लीला है। ऐसा नहीं है कि भगवान टेंशन में आ गए कि अब मैं क्या करूंगा, पर ये भगवान की लीला है, जस्ट दिखाने के लिए कि अपने भक्तों को कितना प्यार करते हैं कि रात भर जो है वो चक्कर लगाते रहे कि अब करूँ क्या, कैसे अपने भक्त को बचाऊं। तो फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था कि अर्जुन ने देखा कि जयद्रथ जो है सबसे पीछे खड़ा है, और उनके आगे सारे हजारों की जो है, अरबों की जो है वो आर्मी खड़ी है और बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं, तो उनको मारना मुश्किल। तो अर्जुन सारा दिन लड़ता रहा, लेकिन जयद्रथ के पास नहीं पहुंच पाया। और भगवान समझ गए कि अब सूर्य अस्त का टाइम होने वाला है, तो अब क्या करूं? तो भगवान ने अपना चक्र चलाया और उन्होंने क्या किया, सूर्य को एक कवर कर दिया कुछ मिनटों के लिए। और जैसे ही भगवान ने सूर्य को कवर करा तो सब लोग चिल्लाने लगे कि कौरवों की साइड से कि चिल्लाने लगे कि देखा सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ अभी भी पीछे ही अभी तक जिंदा है, तो अब तुम्हें तो अपनी कसम पूरी करनी पड़ेगी, अब तुम छलांग लगाओ अग्नि के अंदर, है ना। तो और जयद्रथ आगे भी आगे हंसता हुआ कि देखो मैं तो अब जीत गया। तभी भगवान ने जो अपने जो चक्र है उसको वापस बुला लिया, और जैसे ही वापस बुला लिया तो फिर से एकदम उजाला हो गया। और जैसे ही उजाला हो गया भगवान ने अर्जुन को बोला मारो अब इसे। तो भगवान अर्जुन ने मार दिया और फिर इस तरह से उनकी जीत हुई। तो कहने का क्या मतलब है कि भगवान जो अपनी
इच्छा जो है उनकी वो अपने भक्तों को बचाने की हमेशा करते हैं। भगवान का जो उनको मजा आता है वो अपने भक्तों को किसी तरह खुश करने के लिए जो भी वो करते हैं, ये उनकी इच्छा होती है और ये उनको प्रसन्नता देती है, ना कि मटेरियल वर्ल्ड की कोई चीजें देती हैं। तो ये इसलिए भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ना मैं कर्म फल स्पृहा, ये चीजें जो है मुझे इसका एस्पायर जिसको कहते हैं कि मैं इनकी कामना नहीं करता हूँ। फिर आगे क्या बता रहे हैं, तीसरा पॉइंट, जो ये बात को समझ जाएगा वो भी फ्रूटिव रिएक्शंस में जो है वो फ्रूटिव रिएक्शंस में फंसेगा नहीं। तो अब इसका आंसर कोई बताएगा कि ऐसा क्यों, कि जो ये बात समझ जाएगा कि भगवान जो है वो कर्मों में नहीं फंसते, भगवान जो है इस मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से इच्छा को उनसे प्रसन्नता नहीं मिलती, ना वो इच्छा करते हैं किसी चीज के, जो ये हम में से कोई भी अगर ये समझ जाएगा तो वो भी नहीं फंसेगा। तो कोई ये बताएगा कि ऐसा क्यों, इसका क्या कनेक्शन है भगवान के साथ? बहुत इजी, आप लोग ट्राई कीजिए, आ जाएगा। प्रभु जी, हाँ जी, जितना मेरी समझ में आया है वो ये है कि जो भगवान है उनको तो भक्त की भक्ति चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए ऐसा है। बहुत बढ़िया, सच्ची भक्ति। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई? आपने पॉइंट बिल्कुल सही बोला, लेकिन थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा आंसर हो जाएगा। आपने समझ लीजिए 95% आंसर दे दिया। जी 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 जी। तो थोड़ा सा और कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और आंसर बिल्कुल पूरा हो जाने वाला है। और बाकी लोगों को भी हिंट मिल गया कि इसके साथ कनेक्शन है। तो कोई बताइए। क्योंकि भगवान जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों से खुश नहीं होते, तो उनको भक्ति चाहिए, इसके अलावा और वो तो कुछ ठीक नहीं है माता जी, चाहिए। लेकिन लेकिन हम जो हाँ हैं जी। कैसे बच जाएंगे फिर? मैं बोलूं? अच्छे हाँ कर्म जी, होते हैं इसलिए। नहीं प्रभु जी, और बिल्कुल पास आ गए आप, बस थोड़ा सा और इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। कृष्ण। किसने बोला था? संकेत प्रभु जी आपने बोला था ना? या भक्ति के साथ साथ अपना अच्छा कर्म भी होता है, इसलिए हमको अच्छा चलिए फल बिल्कुल मिलता है। ठीक है, 98% आ गए। बस मैं यही इसी को 2% और कवर कर देना है कि जो आदमी ये समझ जाता है तो वो फिर कर्मों में नहीं पड़ता, वो सिर्फ भगवान के लिए सेवा करता है और फिर उनके जो कर्म होते हैं वो अकर्म हो जाते हैं। और वो क्या चीज है वो हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हमने पहले ये किया हुआ है, लेकिन एक होता है कर्म, विकर्म और अकर्म। अब ये क्या चीज है ये अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और वैसे एक पीछे से और आवाज आई थी हल्की सी कि मैं बोलूं, वो कौन थे? मानविहारिणी माता जी के साथ थी। अच्छा, मान बिहारी, आप बताइए। कि जिसको ये बात समझ आ गई फिर वो कृष्णा की भक्ति करेगा, और कृष्णा की भक्ति हाँ करेगा तो हम भी नहीं फंसेंगे। बस बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही। बहुत और बढ़िया। निकाली नहीं चल, रहेगी प्रभु कुछ मांगने की। बस ये बात, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भगवान जो है वो अपने आप सब कुछ देंगे, राइट टाइम पे राइट चीज देंगे। सिर्फ हमें बस विश्वास रखना है कि भगवान देंगे ही देंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना प्रभा विष्णु? Yes. चलिए बढ़िया है। Also, वैसे जन्म कर्म हाँ, च मे दिव्यम। बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए भगवान सिर्फ भगवान ही हमारे पे ध्यान नहीं देते। जब हम भक्त बन जाते हैं सारे देवी देवता भी जो है हमसे खुश हो जाते हैं। और मैं इसके लिए एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ लेकिन हर बार भूल जाता हूँ, तो मैं आज सुनाऊंगा। आप लोगों ने कभी ये पोस्टर देखा है कि काली माता जो है उन्होंने ऐसे वो पकड़े हुए हैं, स्कल्स पकड़े हुए हैं ऐसे, और उनके पाँव के नीचे और ऐसे डेंजर रूप में जीभ बाहर निकली हुई है और उनके पाँव के नीचे एक राक्षस दबा हुआ है। आपको पता है वो क्या क्या स्टोरी है? कोई जानता है? कोई बताएगा कि वो, कोई आइडिया है कि कोई क्या स्टोरी है वो एक्चुअली? प्रभु मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर मैं बताऊंगी कि तब है ना उनका, आई थिंक कोई बग के ऊपर या किसी के साथ उनका पैर छू गया था, तो इसीलिए वो उनके टंग बाहर आ गई थी। पता नहीं किसको पैर लग गया था, आई डोंट रिमेम्बर दैट।
टंग बाहर आ गई थी? नहीं नहीं नहीं, मतलब चलो प्रभा विष्णु से पूछेंगे। हाँ जी प्रभा विष्णु जी, आपको आइडिया है कि वो उनकी ऐसे ऐसे खतरनाक फॉर्म में क्यों खड़ी हैं, ऐसे ऐसे जीप निकाल के और स्कल्स ऐसे पकड़ी हुई हैं? नहीं, एग्जैक्ट स्टोरी पता नहीं है। चलो थोड़ी ठीक है, श्रुति से पूछेंगे। श्रुति बंगाली है। श्रुति, आइडिया है आपको? नहीं, पूरा नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो गलती से उन्होंने अपने वो शिव जी पे स्टेप कर लिया था उन्होंने। नहीं नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। हाँ, वो एक अलग चीज है। पर वैसे देखिए मैं बताता हूँ, वो स्टोरी ऐसे है कि एक बार भगवान के जो भक्त थे उन्हें कुछ डाकू पकड़ के ले गए बलि चढ़ाने के लिए। छोटे में बता रहा हूँ, डिटेल आप पढ़ सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। जट भारत की तो बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, जड़ भारत तो वो अलग, जड़ भारत की भी एक अलग चीज थी। पर जड़ भारत की भी ये स्टोरी है। तो जो उनके भक्त थे उनको वो, एक्चुअली ये जड़ भारत ही है। हाँ राइट राइट, जड़ भारत ही है। तो उनको उठा के ले गए। हाँ, और उनकी बलि चढ़ाने वाले थे वो। कि उन्होंने सोचा काली माँ को खुश करने का तरीका ये है कि बलि चढ़ा दे। और जड़ भरत देखिए क्या थे कि वो कभी कुछ ढंग से बात नहीं करते थे और ऐसे एक्ट करते थे कि जैसे कोई पागल आदमी हो। तो उन्होंने बोला, और ये बड़ा हट्टा कट्टा भी है, तो एक काम करते हैं, हट्टे कट्टे आदमी की बलि देंगे और जो है काली माता को खुश कर देंगे। तो जब उन्होंने उसको अच्छी तरह नहलाया, तेल वेल की मालिश करी, हाँ, और उसके बाद जब टाइम आ गया, जब वो उनको मारने वाले थे, जस्ट मारने ही वाले थे, तो देवी की जो मूर्ति थी जिनके सामने वो करने वाले थे, वो सडनली बाहर आ गई उसमें से। वो जो मूर्ति में से बाहर आ गई। और मतलब अगर आप लोग ड्रामेटिक थोड़ा इमेजिन कर सके तो उन्होंने खूब, जिसको कहते, क्योंकि मैंने जिससे सुना वो बहुत ड्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने चिल्ला के ऐसे ऐसे करके जितने भी लोग थे सबका जो है पीछे जो है गला काट दिया। और तलवार लेके, जो उनके हाथ में होती है, काली माता के हाथ में जो बड़ी चीज होती है ना, और तलवार, वो जिससे आप चॉप करते हैं लोगों को, वो लेके सबके पीछे भागी और सबका जो है नाश कर दिया। और जो राक्षस भी थे मतलब वो ये था कि पाँव के नीचे भी उन्होंने दबा के ऐसे अपना जो खतरनाक रूप था वो ले लिया था। तो यहाँ पे स्टोरी का मतलब ये था कि जो भक्त होता है भगवान का, हाँ, वो सिर्फ भगवान ही नहीं उनका ध्यान रख रहे होते, देवी देवता भी जो है उनका ध्यान देते हैं। तो ये देखिए, इससे पता लगता है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी रक्षा जरूर होगी। ठीक है ना? आइए अब आगे चलेंगे, 15 पे आएंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृत। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पे देखिए भगवान क्लियर बता रहे हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जिन्होंने पहले ये जो मुक्त हो चुके हैं इन सब चीजों से, उन्होंने जिस तरह से किया वैसे ही तुम भी अपनी ड्यूटी जो है परफॉर्म करो। तो इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सीधा कि हमें जो ये ज्ञान है, और हमें जब जो ज्ञान पाना है और जो ज्ञान पाने के बाद जो फॉलो करना है, वो किनसे लेना है? परंपरा से, परंपरा में लेना है ना? गुरु से लेना है, प्रॉपर गुरु से लेना है, बोनाफाइड गुरु से लेना है, ऐसे ही नहीं लेना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक्सरसाइज हमने करी थी जब हम कर रहे थे, कि हमारे जो जिनसे मैं सीख रहा था उन्होंने हमको बोला आप सब लोग खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उन्होंने बोला अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हमने आंखें बंद कर ली हम सब लोगों ने, और उन्होंने बोला एक बार ऐसे राउंड लगाओ। हमने बोला पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, पर एनीवे हमने आंखें बंद करके एक बार सर्कल किया ऐसे। फिर उन्होंने बोला अब आप लोग ये बताइए कि हाथ करके डायरेक्शन की तरफ बताइए कि कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है। हाँ, तो किसी ने ऐसे दिखाया, हाँ, किसी ने ऐसे दिखाया। एक्चुअली पहले उन्होंने बोला आप करो, तो मैंने भी ऐसे कर दिया। तो उन्होंने बोला अब आप अपनी अपनी आंखें खोलिए। तो जब हम सब लोगों ने आंखें खोली तो मेरा हाथ इस तरफ था, किसी का हाथ इस तरफ था, किसी का हाथ इस तरफ था, किसी का हाथ पीछे था। हाँ तो उन्होंने बोला कि अब बताइए कि ये चार नॉर्थ डायरेक्शंस बन गई हैं, या ये हमारी अपनी अपनी सोच है?
क्या है? तो इससे मतलब आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब था एक्सरसाइज का, कि हम अपनी अपनी सोच से सोचने लगते हैं, मेरे हिसाब से ये नॉर्थ है, मेरे हिसाब से ये नॉर्थ है, मेरे हिसाब से ये नॉर्थ है, किसी और के हिसाब से ये नॉर्थ है। पर एक्चुअली नॉर्थ किस तरफ है ये हमें आंखें खोलने के बाद पता लगेगा कि किस तरफ। करेक्ट। वैसे ही ये भगवान कौन है, हम कौन हैं, मेरे हिसाब से भगवान ये है, तुम्हारे हिसाब से भगवान ये नहीं। हमें ज्ञान जो है प्रॉपर परंपरा में पाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने उनको दिया, आगे फिर उनसे आया, फिर व्यास देव जी से आया, ऐसे 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 करके आना चाहिए। और प्रॉपर गुरु से जो है हमें ज्ञान पाना चाहिए, और फिर उसके बाद हमें फॉलो भी करना चाहिए उनके हिसाब से। अगर हमारा ज्ञान ही गलत है तो फिर हम फॉलो कैसे करेंगे, हम अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करेंगे जब हमारे को ज्ञान ही गलत मिल गया हमें। यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि ऑल द लिबरेटेड सोल्स एक्टेड विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। पर लिबरेटेड, जिनको लिबरेशन मिल चुकी है, उनसे सीखिए। मतलब हमारे लिए इसमें क्या यहाँ पे लेक्चर में होता है कि जो जो गुरु हैं, जो प्रॉपर गुरु हैं, परंपरा में आ रहे हैं, हमें उनसे समझना चाहिए। और फिर वो जो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बताते हैं हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, वैसे बताना चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए संदली माता जी ने अपने गुरु महाराज जी से कुछ पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि अभी तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से अभी ये करना चाहिए, है ना। तो फिर उन्होंने वैसा किया। तो हर एक, अगर वो आज्ञा के बगैर कुछ और कर लें तो कल बाद में परेशानी आएगी, तो फिर उससे सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने ये पूछा कि तुम्हारे टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस जो है उसके हिसाब से भक्ति जो है इस जगह पे ठीक रहेगी, इसलिए फिलहाल अभी तुम लोग यहीं रहिए, ऐसे। तो हम सबको जो है ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो आज अब यहीं पे रोक दें, 10-10 हो गए। और कुछ डिस्कशन है या आगे चले, जैसा आप लोग चाहें। कोई हाँ ना कुछ तो बोल दीजिए सब लोग। किसी को कुछ क्वेश्चन है, डिस्कस करना है तो हम कर सकते हैं वो। प्रभु जी, आज जो क्षमा है ना, क्षमा बहन जो हमेशा आती है, उनके साथ उनके प्रभु जी भी है, वो वेटरनरी डॉक्टर है। बहुत बढ़िया। हाँ, प्रभु जी हमारे एक मिनट, मैं देख रहा हूँ आपको, कहाँ है, एक मिनट। तो सॉरी, क्षमा मेरे पास मोबाइल। स्टार्ट योर वीडियो फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर के लिए वीडियो चालू करते हैं। हाँ हेलो प्रभु जी एक मिनट मेरे पास, क्योंकि मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ तो मैं पेज हिला हिला के देख रहा हूँ आप कहाँ हैं। एक मिनट। તમારું બ્લરી છે પિક્ચર, દેખાતું નથી. મારું દેખાતું નથી. ના, શેર કન્ટેન્ટ છે, વિડિયો સ્કીપ વિડિયોસ, ઓકે બધું ઓન છે ઈ તો. અચ્છા, વિડિયો દેખાય છે પણ પેલું બ્લરી આવે છે, એટલે કઈ તમારા સ્ક્રીન પર કઈ ચોડેલું છે કે સ્ક્રીન માં પેલો કેમેરો હશે. એક મિનિટ, હવે દેખાય છે ક્લીન? હા, મને લાગે પેલો अभी भी क्लियर नहीं आ रहा. એક મિનિટ હવે દેખાય છે? ના, હજી ક્લિયર प्रभु जी एक कुछ खास नहीं। प्रभु जी एक बार कैमरे के पीछे हाथ से सफाई कीजिए, हो सकता है कैमरे में कुछ लगा हुआ हो। कैमरे साफ किया, काफी क्लियर हो गया, थोड़ा और कीजिए, हो सकता है कोई हाथ लग गया हो, घी का हाथ, कोई हैंड प्रिंट, फिंगरप्रिंट लगी हो। अब दिख रहा है? हाँ जी, देखिए आप एकदम क्लियर हो गया। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। धनंजय प्रभु जी बहुत बढ़िया। उनका नाम धनंजय है, जो अर्जुन का दूसरा नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी आप कुछ बताइए। आपका लेक्चर हम हमेशा थैंक यू, थैंक यू। हर संडे को और बहुत मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर जी। और बहुत अच्छा नाम है धनंजय। या अर्जुन का दूसरा नाम है। दूसरा नाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो जो धनुर्विद्या पे जिसने जय मिल लिया है, वो धनुर्जय। लोग गलत अर्थ निकालते हैं, धन का जय। मैंने कहा धन का जय नहीं है, धनुर का जय। उसने जो धनुर्विद्या पे मास्टरी हासिल की है अर्जुन ने, तो उसी का नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। मेरी वाइफ के साथ हम हर संडे मॉर्निंग सुनते हैं।
वैसे मैंने गीता का भी बहुत अध्ययन किया है, सब रिलीजियंस का किया है, और some like a bold philosopher like Krishnamurti, Rajneesh, सबको सुना है हमने, but जो गीता is always contemporary, पुराने साल में भी सही थी, अभी भी सही है, और आने वाले समय में भी सही होने वाली है. गीता to me is like it's like a it's everything, मैनेजमेंट, वॉर के पहले की स्ट्रेटजी बताई, वॉर के बाद की स्ट्रेटजी सबके अंदर होती है, ओनली गीता के अंदर वॉर के पहले की स्ट्रेटजी है, वो यूनिक है, वो भी 5000 साल पुरानी. तो they are taking examples from the preaching of Lord Krishna in modern management too. I heard about that. जी बिल्कुल. प्रभु जी, आपको पता है आजकल जितने भी ये जो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए हैं, आप देखिए मैक्सिमम टाइम जो है गीता से पॉइंट्स निकाल के उसको थोड़ा सा और अच्छी तरह लगा के फिर उसको ही प्रेजेंट करते हैं. वही, वो उतने साल पुराने भी सही थी, अभी भी सही है, तो हमेशा रहेगी सर. जिनकी एक एक क्षण के अंदर यूज होती है गीता, तो उसका जी. वैसे एक चीज बताऊं, ये 5000 साल पुरानी नहीं है, ये तो बहुत साल पुरानी है. हो सकता है. देखिए भगवान ने देखिए खुद बोला है, 4th चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसके 3rd वर्स में यही भगवान बता रहे हैं कि मैंने ये पहले जो है उनको दी, पहले इक्ष्वाकु को दी, फिर ऐसे पूरी ऐसे लाइन दी है. तो अर्जुन उनसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कैसे मालूं कि तुमने पहले ये इनको दी और उनको दी. सॉरी, 1st चैप्टर में 1st वर्स में ये बता रहे हैं कि पहले मैंने सन गॉड को दिया, फिर विविश्वन को दिया, फिर मनु को दिया, है ना. तो अर्जुन बोल रहे हैं सेम चीज कि मैं कैसे मान लूं कि आप इतने पुराने हैं, हमने तो सिर्फ ये सुना है कि अभी अभी 125 साल पुराने आप, महाभारत में आपकी एज है. तो बहुत बहुत ही बढ़िया भगवान ने बताया कि कैसे मैंने पहले बोल रखा है. तो वही चीज है कि हमारे लिए ये अब यहाँ पे आई है, लेकिन भगवान ने तो बहुत पहले बोल दी है भगवत गीता. हाँ जी, वो बहुत बढ़िया. हाँ जी, हाँ, वही सच्ची बात हो सकती है. और मैं वही सुरभा जी को वही बताया, उन पे घर पे गए थे कि religion should not be a serious thing, it should be like a joy, enjoyment. Only religion, only preaching, only example of the Lord Krishna is that the dancing God, singing God, romantic God का यही definition, right? ऐसे बहुत बढ़िया. मैं कोई और रिलीजन की खराब बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई भी देखो, पैगंबर साहब की लाइफ देखो तो पूरी जिंदगी वो सीरियस रहे. जीसस क्राइस्ट, कभी मैंने गीता में सुन रखा, उनकी बाइबल में सुना है कि he never laughed in his life. There is no example where Jesus Christ was laughing. यहाँ जो लॉर्ड है हमारा, वो हमेशा हंसता रहता है, मुरली बजाता रहता है. What a fantastic things. That's the biggest. बहुत बढ़िया. इससे प्रभु जी मुझे एक चीज याद आई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक फॉरेनर आए थे, आपने स्टोरी सुनी होगी कि एक वेस्टर्नर्स आए थे बहुत साल पुराने. तो वो जानना चाहते थे कि सबसे पावरफुल भगवान कौन. तो वो पहले एक मंदिर में गए, तो उन्होंने देखा देवी माँ खड़ी हैं. तो उन्होंने बोला देवी माँ के तो ऐसे खड़ी हैं और बहुत खतरनाक उसमें खड़ी हैं. तो उन्होंने बोला ये तो सारा दिन लगता है बिजी रहती हैं, क्योंकि इनके हाथ में तलवार है और बहुत कुछ है, तो मुझे लगता है ये बहुत बिजी हैं, ये नहीं भगवान हो सकती. फिर वो किसी और के पास गए, मुझे याद नहीं आ रहा किसके पास गए. ऐसे वो अलग अलग जगहों पे जाके देख रहे थे मंदिर में. पर जब वो कृष्ण भगवान के मंदिर में गए तो उन्होंने देखा भगवान तो हंस रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, है ना. तो उन्होंने बोला यही भगवान होंगे. क्यों यही भगवान होंगे? क्योंकि इनको कुछ काम नहीं करना, बस ये अपना फर्स्ट क्लास बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं, बाकी मटेरियल वर्ल्ड अपने आप चल रहा है, यूनिवर्स अपने आप चल रहा है. तो इसलिए भगवान जो है यही होंगे भगवान. हाँ जी, और हमेशा पूरी गीता में हंसते रहे वो, कहीं भी वो ऐसे, इवन जो भी सीरियसनेस भी है वो हंसते हंसते बताई उन्होंने कि भी ये लाइफ का ये मैसेज है कि सीरियसनेस, रिलीजन शुड नॉट बी सीरियस थिंग, इट शुड बी एंजॉयबल थिंग. सो और मेरे हिसाब से when you define the God in some human aspect, there no limitation आ जाता है फिर गॉड का. गॉड तो इतनी बड़ी डेफिनेशन है कि उसको ह्यूमन आकार में देखने की चेष्टा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिमिटेशन आ जाएगा उसकी कैपेसिटी. बहुत बढ़िया, ये आपने पॉइंट बहुत अच्छा बोला प्रभु जी. बहुत बढ़िया पॉइंट है कि भगवान को आप लिमिट नहीं कर सकते. हाँ जी, उनकी भगवत्ता है देखनी है, कृष्ण की भगवत्ता देखनी है. कृष्ण का आकार नहीं देखते हम उसकी भगवत्ता देखते हैं, उसका प्रीचिंग देखते हैं. तो वो बड़ी बात हो गई ना इस रिलीजन. सो इतनी फिलोसॉफी, इतना थिंकिंग जिन्होंने भी बनाया है चीज, और जो भी हम हमारे पास लेके आए हैं,
कृष्ण की और गीता की जो जो प्रीचिंग, वो भी कितने इंटेलिजेंट हो गए कि उसका इंटरप्रिटेशन इतना अच्छा किया है आप जैसे लोग। बहुत बढ़िया। नहीं प्रभु जी, मैं तो सिर्फ अपने गुरु से जो सुना है वो बोल रहा हूँ, पर आपने पॉइंट आज बहुत अच्छा बोला। अगर आप लोग 9.2 वर्ड्स देखें भगवत गीता में, तो भगवान ये बोल रहे हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वाग्यम धर्मम सुसुखम कर्तुमव्यम। मतलब सुसुखम कर्तव्य मतलब ये है कि दिस इज एवरलास्टिंग एंड जॉयफुली परफॉर्म, जॉयफुली परफॉर्म। तो वही बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि किंग ऑफ एजुकेशन है, जो आपने बोला कि आजकल ये सारे लोग भी जो हैं इसे यूज कर रहे हैं। हाँ, और जॉयफुली परफॉर्म करनी है, तकलीफ में नहीं करनी है, ऐसे मुश्किल में नहीं करनी कि अरे कहाँ हमारे पे अब चैंट करना पड़ेगा भगवान का नाम, पूजा करनी पड़ेगी। खुशी खुशी कीजिए। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। और कभी मैंने जी थैंक यू सर, और मैंने कभी देखा नहीं, वेरी रेयरली कृष्ण, आप तो गीता पूरा, मैंने तो पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन कहाँ भी वो गुस्से होते मैंने नहीं देखा है जब तक मैं देखा हूँ। तो गुस्सा वेरी रेयरली करते ना। जी भगवान को गुस्सा ऐसे नहीं आता, तभी आता है जब अपने भक्तों के लिए, भक्तों की जब कोई बेइज्जती कर देता है या कोई उनको तकलीफ पहुंचाता है, तब गुस्सा आता है, ऐसे नहीं आता। हाँ जी, आपसे बहुत अपने बहुत लिए नहीं आता। बात करके खुशी हुई। इट्स वेरी ये एनलाइटनिंग। हमको भी बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए जी। तो ऐसे श्रुति का आंसर नहीं दिया। मैं सोच रहा था श्रुति का आंसर मैं उसे पर्सनली दे दूंगा। ये अभी फिलोसफी यहाँ नहीं टच करेंगे, अंत भेद भेद तत्व बाद में करेंगे इसे, अभी नहीं, जब टाइम आएगा। अभी नहीं, थोड़ा वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, और कोई? प्रभु मुझे है ना एक अनाउंसमेंट करनी है। हाँ जी। ये कमिंग एकादशी 18 तारीख है, बुधवार है, बुधवार है। हाँ, तो बुधवार को हमारे घर पर हम बहुत ही फॉर्चुनेट है कि जो विश्वम्बर प्रभु है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। अभी सबसे पहले चला रहे थे हम वो उनका वीडियो, मायापुरी करके पूरा डिवोटीज का ग्रुप है। वो लोग बहुत ही अच्छा कीर्तन करते हैं। मैं बताऊं, कीर्तन नहीं कॉन्सर्ट ही करते हैं, इतना अच्छा करते। तो वो सब यहाँ पर आ रहे हैं न्यू जर्सी में, और हमने उनका एक प्रोग्राम रखा है एकादशी के दिन। तो जो भी लोकल है, ऑनलाइन भी होगा, पर जो भी लोकल है वो इन पर्सन आ सकते हैं घर पर। तो 18 को शाम को 7 बजे चालू होगा। तो आप सभी आइएगा प्लीज, जो भी लोकल है, नजदीक है, आ सकते हैं। मोर देन वेलकम। प्रभु जी आप तो आने ही वाले हो, तो प्लीज आप आइए। क्या वीकेंड है, वीकडे है? वीकडे है, वेडनेसडे। ओह, मैं भी माता ही लगता है ऑनलाइन ही ज्वाइन करूंगा। अच्छा, देख लेना प्रभु जी। हाँ जी, क्योंकि वीकडे है ना माता जी, अगले दिन फिर बैठना है। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई जी? चलिए फिर आज हम यहीं पे रोक देंगे और अगले शनिवार को करेंगे। अगले शनिवार आप सब लोग फिर आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है कि कैसे हम काम करें। भगवान ये बताने वाले हैं कि कर्म तो करो, लेकिन ऐसे कर्म करो कि उसका रिएक्शन ना आए। और वो ये बताने वाले हैं जिसको बोलते हैं एक्शन इन एक्शन और इन एक्शन इन एक्शन। मतलब कि एक्शन तो किया लेकिन उसका रिएक्शन नहीं आएगा। और दूसरी तरफ है कि लोग इन एक्शन, मतलब कि वो नहीं काम करते, सोचते हैं कि हमें कर्म नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कर्म आएगा। ये कैसे आएगा, ये जानने के लिए आप लोग सब अगले शनिवार को जरूर आइए। बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, आज हम कंप्लीट नहीं कर पाए, अगले सैटरडे से करेंगे। एक नया बैच शुरू हो रहा है, मतलब एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है। तो है उसी के अंदर जो मैंने बताया था कि कैसे अप्लाई करेंगे, पर एक नया सेक्शन। ठीक है, चलिए आज अब हरे कृष्णा 3 बार जप करेंगे और फिर आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। एक बार फिर से संकेत प्रभु जी को हैप्पी बर्थडे
और सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब हेल्दी रहिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। मस्त रहे। बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि सखर बोल। प्रभु, हरे कृष्ण, हैप्पी बर्थडे, हरे कृष्ण हैप्पी you, बर्थडे माताजी। आवाना जो प्रभु जी। हजे बर्थडे। थैंक यू माताजी। हरे हरे ओके, आओ कृष्ण। जो हरे कृष्ण जय माड़ी से थैंक संजय। यू। आप हरे सभी हरे प्रभु जी के लिए प्रे कीजिए कि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में कंटिन्यू रहे और आगे आगे बढ़ते रहे। हरि हरि हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू।